Hi guys, welcome back to our channel. We know it took us a really long time to be back, and now that we are back, we wanted to talk about a really important topic. And जिसकी script हम बहुत time पहले से बना चुके थे, but we just didn't get the time to get along. So let's get started. Now we are all about spreading love and positivity, but sometimes जो process होता है love और positivity का, it sometimes starts by identifying and uprooting things, people, relationship that bring that unhealthy, that toxic, those negative vibes into our life. Especially after Kabir Singh hitting huge numbers, we thought toxic relationships would be the perfect topic to speak about on this channel, on our channel. We really want to talk about how to identify if you're in a toxic relationship and definitely not romanticize them. It usually starts with कि oh, they're so adorable, वो कितने possessive हो रहे हैं, या वो they care about me, but sooner or later it just goes down the hill and blows out of proportion. Now just to be clear, एक toxic relationship का victim जरूरी नहीं है एक लड़की ही हो, एक लड़का भी हो इस toxic relationship का victim हो सकता है. So we will start by telling you how you can identify if you're in a toxic relationship. So without wasting any time, let's get further. So the first sign of a toxic relationship is that there is one giver and one taker. Now what do I mean by this? It is that एक इंसान रिलेशनशिप में ऐसा होगा who will put in all the efforts, who will pour in all the love, and the taker will simply take. As in वो जो taker होगा वो सिर्फ ये चीज़ें डिमांड करता है. वो डिमांड करेगा कमिटमेंट, ट्रस्ट डिमांड करेंगे, लव डिमांड करेंगे, अटेंशन डिमांड करेंगे, लेकिन they will not reciprocate it. वो they will not give you the love, attention, commitment in the same intensity as they expect you to give it to them. और ऐसी रिलेशनशिप में जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो बहुत ऑब्वियस होता है. बहुत ऑब्वियसली एक गिवर होता है और एक टेकर होता है. नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में कोई गिवर टेकर नहीं होता है. दोनों इक्वली लव देते हैं. दे पोर इन द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, दे पोर इन द सेम अमाउंट ऑफ लव, द सेम अमाउंट ऑफ अटेंशन. सो इफ यू आर अ गिवर यू नीड टू, एंड इफ यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ गिवर you need to understand that maybe you're in a toxic relationship. The next indication of a toxic relationship is isolation. It usually starts with the adorable sort of possessiveness कि वो कितने possessive हो रहे हैं, that's so adorable, that's so cute, but sooner or later it turns out कि तू इससे नहीं मिलेगी, या तू इससे नहीं मिलेगा, तू इससे बात नहीं करेगा, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, and before you know and before you realize you only start spending time with that same person. And जो आपकी social life होती है, जो आपकी friends के साथ life है, जो आपकी family है, उन सबको आप एक back seat पे रख देते हो और आप अपने आप को isolate कर लेते हो. Isolation phase के बाद अगर कोई ऐसी situation arise होती है where you're arguing with your partner or you're talking to each other, तो जो victim होता है उसको हमेशा ये सुनने को मिलता है कि तू कहाँ जाएगी या तू कहाँ जाएगा, तेरे पास तो सिर्फ मैं ही हूँ. और ये सिचुएशन के बाद आप अपने बैक ऑफ द माइंड में ये बिलीव करने लग जाते हो कि दैट इज द ओनली पर्सन यू हैव इन योर लाइफ. Maybe because you have spent a good amount of time with them, but you tend to forget that you are keeping others on a backseat because of them. However, when you are in a healthy relationship, जब आप एक अच्छे relationship में होते हो, तो आपकी social life, आपकी friends के साथ and family के साथ जो आपकी life है, that remains more or less the same because there is nothing wrong in making friends. The third sign actually is connected to the indicator that Rashka spoke, that is there is no ट्रस्ट. आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है. इफ अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर कह रहा है कि तू इससे बात नहीं करेगी या तू उससे बात नहीं करेगा बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन, उनका एक्चुअली में कहने का ये मतलब होता है कि दे डोंट ट्रस्ट यू, क्योंकि अगर वो आपकी जगह पे होते तो वो ज़रूर चीट करते. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चीटिंग एट द एंड ऑफ द डे आपके ही हाथ में. तो अगर आप चाहो आप चीट कर सकते हो, दैट इज with or without talking to that person, with or without meeting that person. तो एक healthy relationship होगा तो वहाँ पे trust ज़रूर होगा. They will let you talk to people, they will let you be with other people, and there are other small signs also of no trust, like
वो आपके फ़ोन चेक करेंगे, वो आपके उनके पास आपके अकाउंट्स के पासवर्ड होंगे जस्ट टू चेक टू रीड योर मैसेजेस, एंड यू नो देयर विल बी मैसेजेस दैट विल बी डिलीटेड, देयर विल बी चैट्स दैट विल बी डिलीटेड, क्योंकि आपको लगेगा मैं डिलीट ही कर देता हूँ, इससे पहले वो इशू बनाए, इससे पहले वो इशू बनाए, या एनीथिंग. सो इफ यू आर डूइंग एनी ऑफ दीज थिंग्स, यू नीड टू नो दैट देयर इज नो ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप, एंड इट्स probably not a very healthy relationship, if not a toxic relationship. Many relationships very often turn into abusive ones. When we talk about abusive toxic relationship, we will not only focus on physical abuse, but हम mental और verbal abuse के बारे में भी बात करेंगे. जो victim होता है उसको कभी कभी खुद भी नहीं पता चलता कि वो mentally या verbally abuse हो रहा है, because it is very difficult to detect. But passing derogatory remarks, name calling or dismissive nature, all of this fall under the umbrella of mental and verbal abuse. अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी राशिका एक्चुअली बोलना क्या चाहती है, व्हाट डज शी मीन बाय ऑल दीज थिंग्स. नो, क्या होता है, अब्यूजिव नेचर बेसिकली तब बन जाता है, कुछ एक्शंस आपके अब्यूजिव तब हो जाते हैं जब उनका अंडरलाइन मोटिव, उनका जो छिपा हुआ मकसद होता है टू कंट्रोल, when the person wants to control their पार्टनर. इसका मतलब, एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज, कंट्रोल काफ़ी तरीकों में प्रैक्टिस हो सकता है, वेदर दैट इज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और वर्बल. नाउ फिजिकल डिटेक्ट करना काफ़ी ईजी हो जाता है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स थिंग्स लाइक पिंचिंग, किकिंग, स्लैपिंग, हिटिंग, ये सब फिजिकल अब्यूज में आ जाता है. बट जो अब्यूज़ डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, दैट इज़ मेंटल, वर्बल, इमोशनल अब्यूज़, क्योंकि काफ़ी बार हम इनको छिपा देते हैं. इट इज़ डिस्गाइज्ड एज केयरिंग या पोजेसिव नेचर, कि अरे कोई नहीं आ रहा, हम इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं. थिंग्स लाइक डिसमिसिव नेचर, जैसे राशिका ने बोला. नॉट डिसमिसिव नेचर में क्या है, कभी आपकी बात सुनेंगे नहीं, योर ओपिनियंस डोंट मैटर, तुझे नहीं पता, मैं बता रहा हूँ ना ये सही है, मैं बता रही हूँ ना ये सही है. थिंग्स लाइक दैट, दे विल नेवर, लाइक योर ओपिनियन विल नेवर मैटर इन द रिलेशनशिप, नो मैटर व्हाट. अब अगर आप बोल भी दोगे तो भी इट डजंट मैटर. सेकेंड, जैसा राशिका ने बोला, डेरोगेटरी रिमार्क्स. अरे पागल है क्या, आर यू क्रेजी, ओ शी इज अ क्रेजी पर्सन. एंड इसी से एक और पॉइंट आ जाता है दैट दे विल ऑलवेज पोर्ट्रे यू टू बी द क्रेजी पर्सन. मतलब नो मैटर हाउ हर्ट यू आर, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, यू आर ऑलवेज द क्रेजी पर्सन. यू नो, कुछ भी हो जाए, अरे ये पागल है, अरे तेको पता नहीं, ये हमेशा ओवर रिएक्ट करती है, या तुझे नहीं पता क्या है कितना ओवर इमोशनल है. थिंग्स लाइक दैट. अनदर साइन ऑफ इमोशनल अब्यूज इज दैट दे मेक एवरीथिंग अ टेस्ट. हर चीज़ एक टेस्ट होता है आपके लिए, कि अच्छा तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो ये नहीं करेगी, अच्छा तुम मेरे से प्यार नहीं करती तो ये नहीं करेगा. सो एवरीथिंग इज ऑलवेज अ टेस्ट. एवरी एक्शन ऑफ योर्स, एवरी विश ऑफ योर्स इज ऑलवेज अ टेस्ट. दूसरा होता है, दे विल ऑलवेज रिक्वायर यू टू एक्सप्लेन योरसेल्फ. हमेशा आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे हर चीज़ की, और आपका एक्सप्लेनेशन कभी समझेंगे. लड़ाई में कुछ भी हो जाए या नॉर्मल बात में भी कुछ भी हो जाए, आपका एक्सप्लेनेशन को कभी समझते नहीं. और ऑलवेज इफ यू फाइंड योरसेल्फ ऑलवेज explaining yourself over and over again, even though they don't seem to understand, then maybe it is a sign of a toxic relationship. Another sign of a toxic relationship is behaving erratically. आपको ऐसी सिचुएशन में कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो कोई छोटी सी छोटी बात को भी उठा के आपसे सडनली लड़ना शुरू कर देंगे, और आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है. मतलब वो मुझसे क्यों लड़ रहे हैं इतनी छोटी बात पे. आप घंटों तक लड़ते रहोगे, आर्ग्यू करते रहोगे, और उस चीज़ का कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा. दूसरी चीज़ होती है विद होल्डिंग अफेक्शन एज अ पनिशमेंट. मतलब वो कभी आपकी तारीफ ही नहीं करेंगे. अगर आप अच्छे लग रहे हो, या अगर आपकी कोई बात है जो उनको पसंद आ रही है, वो कभी आपको बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको लगेगा कि आप उनके सर पे चढ़ जाओगे. इफ़ यू आर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, व्हाई विल योर पार्टनर नॉट से गुड थिंग्स टू यू, और व्हाई विल दे नॉट टेल यू दैट यू आर लुकिंग प्रिटी और दैट यू आर डूइंग गुड इन लाइफ. दिस इज अ वेरी वेरी मेजर साइन ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. एंड अनदर थिंग दैट इज कनेक्टेड टू इट इज कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म. वो हमेशा आपको किसी ना किसी छोटी या बड़ी बात को लेके क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे कि तेरे बाल ऐसे क्यों हैं, या why are you wearing these clothes, what are you wearing, या how are you dressed up, you're looking bad. तो आप चाहे कुछ भी करो, चाहे आप उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करो, या आप कुछ भी मिस्टेक करो या कुछ भी करो, आप हमेशा कॉन्स्टेंटली सिर्फ क्रिटिसाइज होगे और कुछ नहीं होगे. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सब एक टॉक्सिक इमोशनल साइकिल बन जाता है, जिससे
विक्टिम जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता। ये छोटी छोटी चीज़ ज़रूरी नहीं, नाउ दीज आर ओनली सम एग्जांपल्स एंड सम साइंस ऑफ एन इमोशनल अब्यूज़। बहुत सारी चीज़ें हमने मिस भी करी हैं, हो सकता है आपके साथ इनमें से कुछ होती हो कुछ ना होती हो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर साइंस ऑफ एन इमोशनल अब्यूज़ फ्रॉम अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। और होता है क्या, ये चीज़ें अक्यूमुलेट हो जाती हैं एंड देन सडनली ये विक्टिम ना रियलाइज़ करने लग जाता है कि उनके साथ शायद कुछ गलत हो रहा है। वो जैसे ये बात रियलाइज करते हैं और इस बारे में बात करते हैं, व्हेन दे स्टार्ट रिवोल्टिंग अगेंस्ट इट, तो जो अब्यूज़र होता है वो सडनली अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। वो सडनली हो जाता है, नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, आई लव यू एंड दिस एंड दैट, एंड दे विल कन्विंस यू, दे विल ट्राई रियली हार्ड टू कन्विंस यू कि ऐसा कुछ नहीं है। दे विल ट्राई टू गेन बैक योर ट्रस्ट एंड द मोमेंट वो आपका विक्टिम का या आपका ट्रस्ट गेन कर लेंगे, दे गो बैक टू देयर सेम बिहेवियर, देन अगेन स्टार्ट इमोशनली अब्यूजिंग यू और वॉट एवर the scene may be. They'll keep doing that until the victim again realizes that something wrong is happening with them. Then they'll again say कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, and then they will change their behavior again. And then this turns into a very toxic emotional cycle जिससे आपका कोई exit नहीं होता. There's no easy exit to you. When you're in a healthy relationship, you celebrate each other, you celebrate your partner's individuality, and if ever a situation arises where you or your partner wants to leave, you never hold them back. You will never tell them to not leave you or never force them to be with you. So whenever you're in a healthy relationship, you have an easy exit. You don't have to explain or give reasons why you are going. If your partner loves you enough, they will always let you go because that is an indication of how much they love you. Now I understand, we understand बहुत मुश्किल होता है इस साइकिल को ब्रेक करना, इस साइकिल से बाहर निकलना. It sometimes takes people years to get out of a toxic relationship, but you have to understand that this is not love. इसको प्लीज़ प्यार का दर्जा मत दो क्योंकि ये प्यार नहीं है, प्यार ऐसा नहीं दिखता है. Love is not tears, love is not begging, love is not crying for attention, love is very happy. You need to know कि यू विल फाइंड लव. ये आपका पहला और आखिरी प्यार नहीं है. यू विल फाइंड लव प्रोवाइडेड यू गेट आउट ऑफ दिस अब्यूज. यू डोंट हैव टू सफर. लव इज नॉट सफरिंग. इसको प्यार मत बोलो. दिस इज नॉट प्यार. If you ever feel like you're in a toxic relationship, please do reach out to us or anyone you're comfortable in talking to. This is not love, this is just a habit, and habits do change with time. So just reach out to us or anyone if you feel like you're in a toxic relationship. We hope we were able to provide you with a little bit of insight on what a toxic relationship is. हम ये नहीं कह रहे यही सारे इंडिकेटर्स हैं या ये इंडिकेटर्स ऑफ अब्यूज़ हैं. इट डिफर्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. ये पत्थर की लकीर नहीं है. ऑब्वियसली हर रिलेशनशिप, हर सिचुएशन अलग होती है, बट एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, we hope it's a good relationship, and if you're not, we hope your suffering ends, and we just don't want you to romanticize something that's not supposed to be romanticized. So we hope we were able to help someone or bring a little bit of awareness if you were not aware. So thank you so much for watching. We'll see you soon.